Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Al Munir High School e-learning system. Assalamu alaikum students. We are going to do chapter number 12 of biology class 10. In this chapter, our major concepts are what are the types of coordination, what is human nervous system, receptors in humans, endocrine system, and what are the disorders of nervous system. First of all, the first question is what is coordination? The tissues and organs in the bodies of multicellular organisms do not work independently of each other. As you know, when we move, if we take the example of movement, when we are writing something, so our hands and fingers work in collaboration with our muscles, eyes, thoughts, etc. And then very intricate movement results. यानी कि when हम जब write कर रहे होते हैं, obviously our hand and fingers are working to write, but with the collaboration of the muscles of hands and fingers, and our eyes, through eyes we can see, and with the thoughts what we are writing. The tissues and organs in the bodies of multicellular organisms do not work independently of each other. They work together, performing their many tasks as the needs of the whole body. यानी कि जितने भी हमारे बॉडी के मसल्स हैं, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स हैं, दे आर ऑल वर्किंग टुगेदर फॉर मैनी टास्क. किस तरह से? दिस मीन्स दैट कि दीज एक्टिविटीज़ आर कोऑर्डिनेटेड, यानी कि all activities we are doing are according to the coordination of our brain, muscles and different organs. तो coordination जो है, it also enables the organism to respond to happenings in the world around it. यानी कि coordination जो है वो न सिर्फ inside our body है with the different muscles and brain and the organs, but it also coordinates with the happenings which are going around us. So now what are the examples of coordination? One of the familiar example of coordination is movement, in which the muscles work together. किस तरह से? when a player runs to catch a ball, so he uses hundred of muscles to move his arms, legs and back. तो his nervous system क्या करता है? He uses the information from his sense organ and coordinate this information with the muscle. तो जब ये coordination हो जाती है तो muscles जो हैं वो contract in the correct sequence, power and length of the time. यानी जो जितनी उसको अपनी according to the power, according to the sequence of contract and relax, they contract and relax, and how much time is required. So this all things coordinate together for the movement. But this is not all. इस तरह such activities involve many other kinds of coordination. वो क्या है? For example, breathing and heartbeat. When we are running, तो our breathing rate or heartbeat rate also increase. Blood pressure is adjusted according to our requirement, and extra heat is removed fast from the body. किस तरह से? all life activities are controlled and coordinated. जितनी भी हमारी life activities है वो सब controlled हैं and they are coordinated with each other. For example, the body work as one unit. One unit के एक body जो है एक one unit के तहत काम कर रही है. उस यूनिट के अंदर क्या है? उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स भी हैं, डिफरेंट सिस्टम्स हैं. डिफरेंट सिस्टम्स क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम है और डाइजेस्टिव सिस्टम है. इस तरह से जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं, दे वर्क टुगेदर, दे कोऑपरेट विद ईच अदर एंड वर्क इन हार्मनी विद ईच अदर, यानी ऑलवेज हेल्प ईच अदर वेयर एवर इट इज़ नीडेड. जैसे अभी आपको एग्जांपल दी रनिंग की, तो वाइल वी आर रनिंग वी नीड मोर एनर्जी. In this case क्या होगा? Our breathing rate will be higher. When breathing rate high होगा, our heartbeat also increases. तो blood pressure जो है वो according to the need वो भी adjust होगा. तो इस तरह से जो extra heat है वो fastly remove होगी from the body. तो all organs in the body are working together with each other in coordination. So this was the coordination. Now the question is, what are the types of coordination? यानी कोऑर्डिनेशन की कितनी टाइप्स हैं?
तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनिजम्स. Number 1, nervous coordination brought about by nervous system. And number 2, chemical coordination brought about endocrine system. So coordination also takes place in unicellular organisms. The response to stimuli is brought about through chemicals. कोऑर्डिनेशन जो है वो ये तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो कोऑर्डिनेशन दो तरह से हो रही है. एक तो हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू हो रही है एंड सेकेंडली इट इज़ गोइंग ऑन बाय एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम में किस तरह हो रही है? थ्रू केमिकल कोऑर्डिनेशन. बट व्हाट हैपन्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो हमारी कोऑर्डिनेशन है इट इज़ ब्रॉट अबाउट थ्रू द chemicals. Animals have both the nervous and chemical coordination systems in their bodies, while plants and other organisms have only chemical coordination. यानी कि जो animals हैं और animals हैं, human beings हैं, they have two types of coordination, nervous and chemical. While plants and other organisms जो हैं unicellular, they have only chemical coordination. Now what is coordinated action? What are the main components of a coordinated action? तो a coordinated action जो है it has 5 components: stimulus, receptor, coordinator, then effector and response. तो first of all I will tell you about what is stimuli. Stimuli क्या है? What happens when we touch a snail? अगर हम एक स्नेल को टच कर रहे हैं तो क्या होता है? स्नेल इंस्टेंटली कवर इटसेल्फ. वी माइट हैव सीन द फ्लावर्स ऑफ सनफ्लावर. सनफ्लावर फ्लावर जो है इट इज़ ऑलवेज मूविंग टूवर्ड्स द सन. एंड व्हाट कुड बी द रीज़न ऑफ ऑल दिस? टच. अब इफ़ वी सी इन द स्नेल तो इट इज़ टच सेंसेशन, एंड इफ़ वी सी इन द सनफ्लावर it is light sensation. So all factors, these are the factors that can bring about certain responses in living organisms. यानी कि ये जो factors हैं ये क्या कर सकते हैं? ये living organisms में response create करते हैं. किस तरह से? और इन्हीं factors को we call them stimuli. The factors which are creating certain responses in the living organisms, they are called stimuli. So we can define a stimulus as any change in environment, either it is external or internal, which can provoke a response in an organism. Yani any factor which can provoke a response or change in an organism, it is called stimulus. So more examples of the stimuli are heat, cold, pressure, sound waves, presence of the chemicals and microbial infections, etc. So this is stimuli. Okay. Now the second is receptors. What are receptors? The stimuli are detected by the special organs, tissues or cells of body. For example, sound waves are detected by ears, light is detected by eyes, chemicals in air are detected by nose and so on. So the stimuli which is detected by special organs, tissues or the cells of body. So these special organs, tissues or cells of body जो हैं they are called receptors. यानी कि which are specifically built to detect the particular type of stimuli. यानी कि हर स्टिमुलाई के लिए एक डिफरेंट रिसेप्टर होगा. इनको स्पेसिफिकली बिल्ड किया जाता है टू डिटेक्ट दिस पर्टिकुलर स्टिमुलाई. तो दीज आर कॉल्ड रिसेप्टर्स. ऐसे ऑर्गन्स, टिश्यू और सेल्स जो कि स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर रहे हैं हम इनको रिसेप्टर्स कहते हैं. नाउ कोऑर्डिनेटर्स. व्हाट आर कोऑर्डिनेटर्स? कोऑर्डिनेटर्स क्या हैं? These are the organs that receive information from receptor and send messages to particular organs for proper actions. Coordinator क्या करते हैं? Coordinator जैसा कि you know it by the name coordination.
ये कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्गन्स को आपस में। किस तरह से कर रहे हैं, यानी ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, उससे रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन रिसीव करने के बाद मैसेज भेजते हैं टू अदर पर्टिकुलर ऑर्गन फॉर प्रॉपर एक्शन। यानी अगर एक सनफ्लावर है तो उसने लाइट के थ्रू, लाइट्स को फैक्टर को उसने फील किया, थ्रू केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है, केमिकल कोऑर्डिनेटर्स मैसेज गया टू पर्टिकुलर ऑर्गन्स टू फॉर प्रॉपर एक्शन, यानी कि फ्लावर विल मूव टुवर्ड्स द लाइट। तो इन नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कोऑर्डिनेटर्स। If we see in nervous coordination which is present in animals and human being, तो nervous coordination में brain and spinal cord जो हैं these are called coordinators। ये क्या करते हैं, they receive information from the receptors and send message through neuron in the form of nerve impulse। यानी कि जब receptor से message receive करने के बाद इंफॉर्मेशन थ्रू नर्व्स जाती है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में, वहाँ से रेलेवेंट ऑर्गन का जिसने एक्शन परफॉर्म करना है उस तक इंफॉर्मेशन जो है वो वापस थ्रू न्यूरॉन्स जो है वो नर्व इम्पल्स की फॉर्म में भेजी जाती है। तो ऑन द अदर हैंड इन केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या हो रहा है कि वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्ले द रोल ऑफ कोऑर्डिनेटर्स। किस तरह से, दे रिसीव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वेरियस केमिकल्स, यानी वो डिफरेंट केमिकल्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं एंड सेंड मैसेज बाय सिक्रीटिंग द पर्टिकुलर हार्मोन्स इन द ब्लड। और जो हार्मोन्स रिक्वायर हैं ब्लड में वो उन हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं सो द एक्शन कैन बी परफॉर्म्ड। तो दीज आर कोऑर्डिनेटर्स जो हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन में कौन कौन से हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या है, वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स। वो क्या करते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ वेरियस केमिकल्स जो हैं वो अपना मैसेज सेंड करते हैं बाय सिक्रेटिंग पर्टिकुलर हार्मोन्स। नाउ व्हाट आर इफेक्टर्स? These are the parts of body which receive messages from coordinators and produce particular responses। यानी इफेक्टर्स ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो कोऑर्डिनेटर से मैसेज रिसीव करते हैं और पर्टिकुलर रिस्पॉन्स जो है वो देते हैं। वो किस तरह से, नर्वस कोऑर्डिनेशन में किस तरह से है कि न्यूरॉन्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स, यानी ब्रेन एंड स्पाइनल। कोऑर्डिनेटर्स क्या है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से जब न्यूरॉन्स मैसेज वापस लेकर आते हैं और टू मसल्स एंड ग्लैंड्स, यानी कि ऐसे है ना कि व्हेन if we take a hand near the fire तो we instantly feel healed। तो our skin muscles ने, our skin जो है it is receptor, उसने हीट फील की और मैसेज सेंड किया थ्रू कोऑर्डिनेटर्स टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से वापस मैसेज आया टू द मसल्स ऑफ द हैंड और वी इंस्टेंटली मूव ओवर हैंड बैक फ्रॉम द फायर। तो इस तरह से ओवर जहाँ तक कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो इफेक्टर मसल्स या ग्लैंड्स तक मैसेज जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं, मैसेज कैरी करते हैं। तो और इन केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है पर्टिकुलर हार्मोन्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू पर्टिकुलर टारगेट टिश्यू विच एक्ट एज इफेक्टर्स। फॉर सम हार्मोन्स यानी नेफ्रॉन्स एक्ट एज इफेक्टर्स। जो नेफ्रॉन्स हैं, सम हार्मोन्स ऐसे हैं जिसमें नेफ्रॉन्स एक्ट एज इफेक्टर्स के साथ से। सिमिलरली बोन्स एंड लीवर एक्ट एज इफेक्टर्स फॉर मैनी हार्मोन्स। नंबर 5, response. On receiving message from coordinator, the effector perform the action and this action is called response. When effectors जो है, effectors क्या हैं, जो रिसीव कर रहे हैं मैसेज स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से, जब वो अपना मैसेज रिसीव करते हैं और उसके एंड के तौर पर, उसके रिजल्ट के तौर पर वो एक्शन परफॉर्म करते हैं तो उस एक्शन को हम रिस्पॉन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पुलिंग आवर हैंड अवे फ्रॉम समथिंग वेरी हॉट एंड द मूवमेंट ऑफ द फ्लावर ऑफ सनफ्लावर टूवर्ड्स लाइट आर रिस्पॉन्सेज। तो यूजुअली नर्वस कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूसेस इमीडिएट बट शॉर्ट लिविंग रिस्पॉन्सेज, वाइल केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है इट प्रोड्यूसेस स्लो बट लॉन्ग लिविंग रिस्पॉन्सेज। नाउ आप यहाँ पे ये क्वेश्चन हाईलाइट कर लें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। क्या डिफरेंस है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है इट प्रोड्यूसेस इमीडिएट बट
short living responses, while chemical coordination जो है वो produces slow but long living responses, यानी उसका जो response है वो ज़्यादा time के लिए होता है. This is the diagram of nervous and chemical coordination. In nervous coordination, these are the receptor, yani means our sense organs. These receive messages, and receptor, when they receive the message and they coordinate the message through neurons till coordinators, yani brain and spinal cord. From brain and spinal cord, message is sent back to the effectors through neurons in the form of nerve impulse, and effector muscle or gland, they give response. And in chemical coordination, यानी receptor या में body parts जो हैं, they are receptors, or they secrete some chemicals. These are the chemicals in the blood. And coordinators क्या है? Endocrine glands. They receive the message and secrete particular hormones which are required. For example, effector इसमें कौन से हैं? हमारे bones, liver और nephrons, etc. Now we will study about the human nervous system. What is human nervous system? We write a short note on human nervous system. We have understood the basic model of working of nervous system. The nervous system in humans and in other higher animals is composed of two major components, that is central nervous system and peripheral nervous system. यानी कि नर्वस सिस्टम के दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, वो वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द सेकंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम comprises coordinators brain and spinal cord, while peripheral nervous system consists of the nerves that arise from central nervous system and spread in different parts of body. So all these components are made up of neurons. Now we will first examine the structure and type of neuron, and then we will go to the division of the nervous system. यानी कि हमारे नर्वस एक ह्यूमन नर्वस सिस्टम में दो मेजर कॉन्सेप्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इट कंसिस्ट ऑफ द नर्व्स दैट अराइज फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड स्प्रेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सबसे पहले वी विल स्टडी द नर्व सेल एंड न्यूरॉन. व्हाट इज नर्व सेल और न्यूरॉन, या डिस्क्राइब, यहाँ पर आप क्वेश्चन राइट कर लें, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन और नर्व सेल. तो स्ट्रक्चर क्या है न्यूरॉन का? नर्व सेल और न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्वस सिस्टम का जो एक यूनिट है दैट इज नर्व सेल और न्यूरॉन. The human nervous system consists of billions of neurons plus supporting neuroglial cells. The human nervous system जो है it consists of billions of neurons plus supporting cells. Supporting cells कौन से हैं? Neuroglial cells. Neurons जो हैं ये specialized cells हैं. These are the specialized cells that are able to conduct nerve impulses from receptors to coordinators and from coordinators to effectors. Neurons क्या हैं? These are the specialized cells. Specialized cell हैं, उनके अंदर क्या एबिलिटी होती है? उनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो रिसेप्टर से नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं टू कोऑर्डिनेटर्स एंड कोऑर्डिनेटर से उनको कंडक्ट करके टू द इफेक्टर्स. तो इन दिस वे दे कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड also with other types of body cells. So the nucleus and most of the cytoplasm of a neuron is located in its cell body. This is the structure of a model neuron. It is a motor neuron. This is cell body. Cell body has a nucleus in the middle and it is cytoplasm. Different processes extend out from the cell. ये है different processes जो हैं they extend out from the cell body and these are called dendrites and one axon is extended. Dendrite क्या करते हैं? They conduct impulses towards cell body. They conduct impulses towards the cell body and axons क्या कर रहे हैं? They conduct impulses away from the cell body.
Axon conduct impulse away from the cell body, while dendrite conduct impulses inside the cell body. So a nerve impulse, what is a nerve impulse? A nerve impulse is a wave of electrochemical changes that travels along the length of neurons. This is myelin sheath around the axon, and these are ये जो inside इस तरह से shape बन रही है cleavage, these are called nodes of Ranvier, and these are Schwann cells. This is the structure of interneuron, and this is the structure of sensory neuron. Schwann cells are, what are Schwann cells? Schwann cells are special neuroglial cells located at regular intervals along the axon. ये देखिए, ये Schwann cells है, located at regular intervals along the axon. In some neurons, Schwann cells secrete a fatty layer. कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिसमें Schwann cells क्या करते हैं, एक फैटी लेयर बना देते हैं. किस तरह से फैटी लेयर? उस फैटी लेयर को हम कहते हैं माइलिन शीथ. ये देखें, ये आपको येलो कलर की जो शो हो रही है, इट इज़ कॉल्ड माइलिन शीथ. ये फैटी लेयर है over axon. So between the areas of myelin on an axon, there are non-myelinated points called the nodes of Ranvier. These are non-myelinated points called nodes of Ranvier. तो myelin sheath जो है is an insulator, so the membrane coated with this sheath does not conduct nerve impulse. myelin sheath क्या है? एक इंसुलेटर के तौर पर काम है. इंसुलेटर के मीन क्या है कि जहाँ पर myelin sheath सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, Schwann सेल्स, तो myelin sheath क्या करती है, वो does not conduct the nerve impulse. In such a neuron, impulses जो हैं वो क्या करती हैं, they jump over the areas of myelin going from node to node. इस तरह से they jump over the areas of myelin from node to node, इस फॉर्म में, इस तरह से. तो such impulses are called saltatory यानी jumping impulses, and this increase the speed of nerve impulses. अगर आपके पास short question आए या MCQs बने कि what are the saltatory impulses या jumping impulses, तो when neurons यानी impulses जो हैं jump over the areas of myelin going from node to node, तो such impulses are called the saltatory या jumping impulses. तो ये क्या करता है, this increases the speed of nerve impulse. इस तरह से क्या होता है, अगर ये jumping impulses क्रिएट हों तो ये क्या करती हैं, ये nerve impulse की स्पीड को increase कर देती हैं. On the basis of their function, neurons are of 3 types. यहाँ पर आप अपना क्वेश्चन मेंशन करें, what are the types of neurons? So on the basis of their functions, neurons has 3 types: sensory neurons, interneurons and motor neurons. First of all, sensory neurons. Sensory neurons conduct sensory information यानी nerve impulse from receptors towards the central nervous system. Central nervous system means towards the brain and spinal cord. So sensory neurons have one dendrite and one axon. They have only one dendrite and one axon. These are sensory neurons. Number 2, interneurons. Interneurons form brain and spinal cord. यानी कि जो हमारा brain और spinal cord है, they are made up of interneurons. Interneurons क्या कर रहे हैं, ये information receive करते हैं, उसको interpret करते हैं and stimulate the motor neurons, और motor neurons को stimulate कर देते हैं. They have many dendrites and axons. If you see, these are interneurons. They have many dendrites and axons. Because they are receiving the information, उसको interpret भी कर रहे हैं, then motor neurons को stimulate कर रहे हैं, ताकि motor neurons फिर क्या करते हैं, motor neurons carry information from interneurons to muscle और glands में, यानी effectors. वो उन effectors तक information को carry करते हैं जिन्होंने एक्शन परफॉर्म करना है. तो दे हैव मैनी डेंड्राइट्स बट ओनली वन एक्सॉन. वन एक्सॉन
ही इनमें प्रेजेंट होता है मोटर न्यूरॉन में, बट दे हैव मैनी डेंड्राइट्स. Now what is nerve? A nerve means the union of several axons that are enveloped by a covering made up of lipid. Nerve क्या है? A nerve means the union of several axons that are enveloped by a covering made up of lipid. So based on the property of axons, the nerves are classified into three types: sensory nerves, motor nerves and mixed nerves. So what are sensory nerves? Sensory nerves contain the axons of sensory neuron only. यानी इसमें सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं. इन मोटर नर्व्स कंटेन्स द एक्सॉन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स ओनली, एंड द मिक्स नर्व्स कंटेन द एक्सॉन्स ऑफ बोथ, यानी सेंसरी एंड motor. So in certain parts of the body, the cell bodies of many neurons form a group enveloped by a membrane. This is called ganglion. तो गैंग्लियन क्या है कि कुछ पार्ट्स ऑफ बॉडी में इस तरह से होता है कि जो सेल बॉडीज़ हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ जो हैं वो एक ग्रुप की फॉर्म में इकट्ठी हो जाती है और उनके ऊपर एक मेम्ब्रेन बन जाती है. इसको हम कहते हैं गैंग्लियन. दिस इज़ कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ नर्व्स which is covered by a membrane is called ganglion. Now what are the divisions of the nervous system? Divisions क्या है? Central nervous system and peripheral nervous system. The first division is central nervous system. The central nervous system consists of brain and spinal cord. Now what is brain? How it is protected and what are the main divisions of brain? तो brain क्या है? In animals all life activities are under the control of brain. यानी अगर एक animals या ले human beings की मिसाल लें, जितनी भी all life activities are under the control of brain. तो the structure of brain is suitable to perform this function. अब इसकी लोकेशन क्या है? What is the location of the brain? तो ब्रेन इज सिचुएटेड इनसाइड अ बोनी क्रैनियम, यानी पार्ट ऑफ द स्कल. एक बोनी क्रैनियम जो बना हुआ है पार्ट ऑफ द स्कल, ये उसमें प्रेजेंट होता है. तो इनसाइड द क्रैनियम, क्रैनियम क्या है? द बोनी पार्ट ऑफ द स्कल. इनसाइड द क्रैनियम ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 लेयर्स. यानी ब्रेन जो है क्रैनियम के अंदर फर्दर 3 लेयर्स आर प्रेजेंट. दीज लेयर्स आर कॉल्ड मेनिंजेस. इन लेयर्स को हम क्या कहते हैं? मेनिंजेस. यानी इनसाइड द क्रेनियम ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 लेयर. दीज लेयर्स आर कॉल्ड मेनिंजेस. मेनिंजेस का व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मेनिंजेस? मेनिंजेस क्या करते हैं? दे प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू ब्रेन टिश्यूज थ्रू देयर कैपिलरीज. यानी मेनिंजेस के अंदर अब ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं. ब्लड कैपिलरीज क्या कर रही हैं? दे प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द ब्रेन टिश्यू एंड जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स टू द ब्रेन टिश्यूज. तो द ब्रेन कंटेन्स फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स दैट आर कंटिन्यूस विद द सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. तो ब्रेन क्या करता है? इट कंटेन्स फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स. इसमें वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो फ्लूइड से फिल्ड हैं और दैट आर कंटिन्यूस विद द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. यानी कि वो स्पाइनल कॉर्ड के साथ कंटिन्यू करके उससे मिल जाते हैं. तो जो फ्लूइड विद इन द वेंट्रिकल्स प्रेजेंट है और सेंट्रल कैनाल में, इट इज़ कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. CSF in short form, CSF. तो what is CSF? Cerebrospinal fluid. और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इनसाइड द ventricles और central canal. Now what are the main divisions of the brain? यानी ब्रेन की जो मेन डिविजन्स हैं वो क्या हैं? There are 3 major regions. There are 3 major regions in the brain of human and other vertebrates. ये कौन से मेन रीजन्स हैं? These are forebrain, midbrain and hindbrain. तो important parts of each of these regions are described below. First of all, forebrain. फोरब्रेन जो है सबसे पहले इट इज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द ब्रेन. यानी ब्रेन का जो मेजॉरिटी एरिया है दैट इज़ कॉल्ड फोरब्रेन. इट इज़ मोस्ट हाईली डेवलप्ड इन ह्यूमन बींग्स. यानी ह्यूमन बींग में जो सबसे ज़्यादा हाईली डेवलप्ड एरिया है दैट इज़ फोरब्रेन, द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द ब्रेन.
अब फोर ब्रेन में जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, इसके फर्दर फोर ब्रेन को जो है वो फर्दर डिवाइड किया गया है इन थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेरिब्रम. Forebrain is divided into further three parts: thalamus, hypothalamus and cerebrum. Thalamus जो है it lies just below the cerebrum. इसकी लोकेशन क्या है? Lies just below the cerebrum. It serves as a relay center between various parts of brain and spinal cord. ये किस तरह से काम कर रहा है? रिले सेंटर. रिले सेंटर मीन ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को आपस में कोऑर्डिनेट कर रहा है. इट आल्सो रिसीव एंड मॉडिफाइज द सेंसरी इम्पल्सेस एक्सेप्ट फ्रॉम नोज. ये कहाँ से, अब नर्व इम्पल्सेस ये कहाँ से रिसीव कर रहा है? जितने भी सेंसरी इम्पल्सेस हैं उनसे रिसीव करता है, एक्सेप्ट फ्रॉम नोज एंड बिफोर दे ट्रेवल टू सेरिब्रम. यानी सेरिब्रम में जाने से पहले सबसे पहले सेंसरी इम्पल्सेस जो हैं वो थैलेमस में रिसीव होती हैं और थैलेमस इनको जो है वो सेरिब्रम में ट्रांसफ़र कर देता है. तो थैलेमस इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन पेन रिसेप्शन एंड कॉन्शियसनेस, स्लीप एंड अवेकनिंग. तो थैलेमस किस किस में इन्वॉल्व है, इसके क्या क्या फंक्शन है? सबसे पहले एक तो ये रिले सेंटर, एज अ रिले सेंटर काम करता है बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन को कोऑर्डिनेट कर रहा है. सेकेंडली इट रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम एक्सेप्ट नोज. थर्ड इट इज़ इन्वॉल्व इन पेन रिसेप्शन एंड कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस में क्या है? हमारी स्लीप एंड अवेकनिंग. नंबर 2 हाइपोथैलेमस. फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लोकेशन क्या है? हाइपोथैलेमस लाइज अबव मिड ब्रेन एंड जस्ट बिलो द थैलेमस. इसकी क्या लोकेशन है हाइपोथैलेमस की? कि लाइज जस्ट अबव द मिड ब्रेन, मिड ब्रेन से थोड़ा ऊपर प्रेजेंट है और जस्ट बिलो द थैलेमस और थैलेमस से नीचे. तो इन ह्यूमन इट इज़ रफली द साइज ऑफ एन एलिमेंट. इसका साइज क्या है? लाइक एन एलिमेंट. तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, यानी अब हाइपोथैलेमस के फंक्शन क्या है? सबसे पहला फंक्शन इसका ये है कि इट लिंक्स द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. ये लिंक करता है, कोऑर्डिनेट करता है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को. नंबर 2 ये क्या कर रहा है? इट कंट्रोल्स द सिक्रीशंस ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी जितनी भी पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशंस हैं उन सबको कंट्रोल कर रहा है. इट आल्सो कंट्रोल्स द फीलिंग्स सच एज रेक, पेन, प्लेजर एंड सॉरो. नंबर 3 सेरिब्रम. सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन. ये फोर ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है. इट कंट्रोल्स स्केलेटल मसल्स. इसके फंक्शंस हैं क्या है? इट कंट्रोल्स स्केलेटल मसल्स, थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड इमोशंस. जितने भी थिंकिंग है या स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट है, इंटेलिजेंस है एंड इमोशंस है, वो सब दे आर ऑल फंक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर, यानी सेरिब्रम को फर्दर 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड किया गया, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में. तो द इंटीरियर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर कॉल्ड olfactory bulbs. Cerebrum जो है it is divided into 2 hemispheres. The interior part of cerebral hemisphere are called olfactory bulbs. Olfactory bulb क्या कर रहे हैं? They receive impulses from olfactory nerves and create the sensation of smell. The interior part of cerebral hemisphere जो हैं they receive impulses from olfactory nerve and create the sensation of smell. यानी कि जो नोज़ की जो olfactory nerve जो नोज़ से आ रही है इसकी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और सेंसेशन ऑफ स्मेल को क्रिएट कर रहा है. तो द अपर लेयर ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, द अपर लेयर ऑफ सेरिब्रल, अब सेकेंड, एक तो द इंटीरियर पार्ट एंड सेकेंड इज अपर लेयर ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दैट इज cerebral cortex consists of gray matter. The gray matter of nervous system consists of cell bodies and non-myelinated axons. यानी जो nervous system है, जो gray matter है nervous system का, it consists of cell bodies and non-myelinated axons. Non-myelinated mean they don't have the fatty layer on the axons. तो these
जो ग्रे मैटर ऑफ नर्वस सिस्टम है वो किस पर कंसिस्ट करता है, सेल बॉडीज एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। तो बीनीथ दिस लेयर इज प्रेजेंट दी वाइट मैटर। तो द वाइट मैटर ऑफ नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन्स। वाइट मैटर पे किस पे कंसिस्ट कर रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन। माइलिनेटेड मीन दे हैव अ फैटी लेयर ऑन द एक्सॉन। सेरिब्रल कॉर्टेक्स हैज अ लार्ज सरफेस एरिया एंड इज फोल्डेड इन ऑर्डर टू फिट इन द स्कल। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है और इस तरह से फोल्डेड है कि इट कैन बी इजीली और प्रॉपरली फिटेड इनटू द स्कल। तो जो सेरिब्रम है इट हैज़ 4 लोब्स, frontal lobe, parietal, occipital and temporal. Frontal lobe क्या कर रही है, it controls motor functions, permits conscious control of skeletal muscles and coordinate the movement involved in speech. यानी frontal lobe का क्या काम है, ये मोटर जितने भी मोटर फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल कर रही है, कॉन्शियसनेस अलाउ करती है और इट अलाउज द कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ द स्केलेटल मसल्स एंड कोऑर्डिनेट्स विद द मूवमेंट इन्वॉल्व्ड इन स्पीच। यानी ड्यूरिंग स्पीच जितनी भी मूवमेंट्स हो रही हैं उनको कोऑर्डिनेट करती है। नंबर 2 पैराइटल लोब। पैराइटल लोब क्या है, इसमें सेंसरी एरियाज आते हैं दैट रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम द स्किन। ऑक्सीपिटल लोब, ऑक्सीपिटल बाय द नेम विजन से, it receive and analyzes the visual information. Temporal lobe concerned with hearing and smell. Frontal क्या है, आपके मोटर फंक्शंस है, यानी it allows the conscious control of skeletal muscle. Parietal क्या कर रही है, सेंसरी एरियाज यानी स्किन से जितनी भी इम्पल्सेस आ रही हैं उनको रिसीव करती है। ऑक्सीपिटल क्या कर रही है, वो विजुअल इंफॉर्मेशन को रिसीव और एनालाइज कर रही है। और टेम्परल जो है इट इज़ कंसर्न विद द हेयरिंग एंड द स्मेल। तो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, द फर्स्ट डिवीजन दैट इज फोर ब्रेन। नाउ वी विल स्टडी द सेकेंड डिवीजन। सेकेंड डिवीजन जो है यानी मिड ब्रेन। मिड ब्रेन की लोकेशन क्या है, सबसे पहले मिड ब्रेन जो है इट लाइज बिटवीन हिंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन एंड कनेक्ट्स दी टू। यानी कि ये हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन के दरमियान में प्रेजेंट है और उन दोनों को आपस में कनेक्ट भी कर रही है। तो ये क्या करती है, इसके फंक्शंस क्या हैं, इट रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशंस। फंक्शंस क्या है, इट रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन and send it to the appropriate part of the forebrain। यानी कि ये जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है उनको रिसीव करना और उनको appropriate पार्ट ऑफ द ब्रेन तक सेंड करना, ये किसका फंक्शन है, मिड ब्रेन का। और ये आल्सो कंट्रोल सम ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस एंड पोस्चर। इट आल्सो कंट्रोल्स जो हमारे जितने भी ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस हैं और जो पोस्चर कंट्रोल है ये उसको भी कंट्रोल कर रहा है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। दिस इज़ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन दिस इज़ द लार्जेस्ट पार्ट एरिया ऑफ द फोर ब्रेन, दैट इज सेरिब्रम। दिस इज थैलेमस, दिस इज हाइपोथैलेमस, दिस इज parietal lobe, this is occipital lobe and this is frontal lobe. This is pituitary gland, this is midbrain, present between the hindbrain and forebrain. Hindbrain जो है इसके भी 3 parts हैं, cerebellum, pons and medulla oblongata. After medulla oblongata the spinal cord starts. And this is the temporal lobe present in the cerebrum. Now what is hindbrain? Hindbrain को भी 3 पार्ट्स, मेजर पार्ट्स में डिफाइन किया गया है, मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरिबेलम, पोन्स। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा? इट लाइज ऑन द टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यानी टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेजेंट है। इट कंट्रोल्स ब्रीथिंग, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। यानी जितने भी हमारे, अब इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि दीज ऑल आर involuntary actions which are not under our control. These are going on continuously, यानी our breathing भी going on continuously, heart rate, blood pressure।
तो these are controlled by medulla oblongata, and it also controlled many reflexes such as vomiting, coughing, sneezing, etc. तो information that passes between spinal cord and the rest of the brain pass through medulla. तो जो information है जो spinal cord के through pass on होती है on rest of the brain, it also passes through the medulla oblongata. तो the medulla oblongata, pons and midbrain, they connects the rest of the brain to spinal cord, and they are collectively referred to as brain stem. यानी कि जो medulla oblongata, pons and midbrain हैं, they are also referred as brain stem. Cerebellum, cerebellum जो है is behind medulla, यानी it is behind the, this is medulla and it is behind the cerebellum is present. Cerebellum जो है it coordinates the muscle movements. Now pons, pons is present on top of medulla. This is medulla and the top of the medulla, pons is present. It assists the medulla in controlling breathing. Assist means it helps the medulla to control breathing rate. It also serves as a connection between cerebellum and the spinal cord. यानी जो cerebellum और spinal cord के दरमियान connection के लिए भी ये use होती है. तो this is the structure of human brain. Now we will study about the spinal cord. ये था human brain का structure. Now we will study about spinal cord. What is the spinal cord? Here describe the structure and functions of spinal cord. So the spinal cord is in fact a tubular bundle of nerves. It starts from brain stem and extends to lower back. यानी मेडुला से नीचे स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती है एट ब्रेन स्टेम. ब्रेन स्टेम मीन एट द एंड ऑफ द ब्रेन. तो स्पाइनल कॉर्ड जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम ब्रेन स्टेम एंड एक्सटेंड्स टू लोअर बैक लाइक ब्रेन. स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो कवर्ड बाय मेनिंजेस. ये जिस तरह से ब्रेन जो है इनसाइड द क्रैनियम 3 मेनिंजेस जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं जो ब्रेन को कवर अप कर रही हैं, और इन मेनिंजेस में कैपिलरीज, blood capillaries are present to provide the sufficient nutrients and oxygen. इसी तरह से spinal cord is also covered by meninges and the vertebral column surrounds and protects the spinal cord, just as in brain. Brain is protected by cranium while the spinal cord is protected by vertebral column. Spinal cord is the continuation of medulla oblongata. So the outer region of spinal cord is made up of white matter containing myelinated axons. जो outer region है spinal cord का वो white matter से बना हुआ है और इसमें myelinated axons present होते हैं, और central region जो है it is butterfly shape में है और that surround the central canal, और इट इज़ मेड अप ऑफ ग्रे मैटर. यानी सेंट्रल रीजन ग्रे मैटर से है और आउटर रीजन वाइट मैटर प्रेजेंट है, और ग्रे मैटर जो है इट कंटेन्स न्यूरॉन सेल बॉडीज. 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइज अलोंग द स्पाइनल कॉर्ड. यानी कि 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होते हैं, एंड दीज आर मिक्स्ड नर्व्स बिकॉज ईच कंटेन द एक्सॉन ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन. यानी कि जो 31 पेयर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जो इसमें से निकल रहे हैं स्पाइनल नर्व्स के, वो मिक्स्ड नर्व से बने होते हैं. क्यों मिक्स्ड नर्व से इनको हम कहते हैं? बिकॉज दे कंटेन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स. इनमें सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं. एट द पॉइंट वेयर अ स्पाइनल नर्व अराइजेज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड देयर आर 2 रूट्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स. बोथ रूट्स यूनाइट एंड फॉर्म वन मिक्स्ड स्पाइनल नर्व. यानी कि जब स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड से जहाँ से अराइज होती है उस पॉइंट पे स्पाइनल नर्व की 2 रूट्स प्रेजेंट होती हैं. बोथ रूट्स क्या करती हैं? वो आपस में यूनाइट करके एक मिक्स्ड स्पाइनल नर्व क्रिएट करती हैं. तो स्पाइनल कॉर्ड इज़ रफली 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड अबाउट एज वाइड एज योर थंब फॉर मोस्ट ऑफ इट्स लेंथ. यानी इसकी जो वाइडनेस रहती है एज ओवर लाइक ओवर थंब, और जो इसकी लेंथ है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली या रफली जो आइडिया है इट इज़ 40 सेंटीमीटर लॉन्ग.
So the dorsal root contains sensory axon and a ganglion where cell bodies are located. The ventral root contains axons of motor neurons. ये dorsal root है. It contains sensory axons and a ganglion where cell bodies are located. And the ventral root ये motor neurons contain करती हैं. This is white matter यानी outer और inner side grey matter is present. And these are interneurons. Spinal cord performs two main functions. अब यहाँ पर आप है what are the main functions of the spinal cord? It serves as a link between body parts and brain. Spinal cord transmit nerve impulses from body parts to the brain and from brain to body parts. Spinal cord जो है ये एक कोऑर्डिनेटर के तौर पर भी काम कर रही है, responsible for some simple reflexes. Now what is peripheral nervous system? The peripheral nervous system is composed of nerves and ganglia. Ganglia क्या हैं? Ganglia are the clusters of neuron cell bodies outside the CNS. CNS mean central nervous system. यानी जब neurons की cell bodies इकट्ठी हो जाती हैं तो this is called ganglia और it is enveloped by a membrane, then it is called a ganglia. तो nerves arise or led to brain and spinal cord. So they are named as cranial and spinal nerves. तो human body have 12 pairs of cranial nerves and 31 pairs of spinal. यानी human body में 12 pairs of cranial nerves हैं and 31 pairs of spinal nerves are present. Some cranial nerves are sensory and some are motor and some are mixed. On the other hand, all spinal nerves are mixed nerves. यानी जो cranial nerves हैं वो कुछ sensory हैं, कुछ motor हैं और कुछ mixed हैं. But जो spinal nerves हैं, तो जो 31 pairs of spinal nerves हैं, they are all composed of mixed nerves. यानी both sensory and motor. They have the axons of both sensory and motor neurons. So the cranial and spinal nerves make two pathways, that is sensory pathway. Sensory pathway क्या है? Conducted impulses from receptor to CNS. यानी जब receptor से CNS तक impulse create हो रही है, receptor से receive होकर towards brain ये जा रही है, तो उस पाथवे को हम कहते हैं सेंसरी पाथवे. और दूसरा पाथवे है मोटर पाथवे. मोटर पाथवे में क्या है कि इम्पल्स जो है वो नर्व इम्पल्स कंडक्ट हो रही है फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से टुवर्ड्स द इफेक्टर्स. इफेक्टर्स क्या करते हैं? दे परफॉर्म द फंक्शन. तो मोटर पाथवे जो है वो दो सिस्टम बनाती है. अब हमारे पास दो टाइप्स के पाथवे हैं, सेंसरी पाथवे एंड मोटर पाथवे. तो मोटर पाथवे मेक्स टू टाइप्स ऑफ सिस्टम, दैट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड autonomic nervous system. It is somatic nervous system is responsible for the conscious and voluntary actions. जितने भी conscious और voluntary actions हैं which are under our control, they are all responsible by somatic nervous system. तो it includes all of the motor. अगर action perform हो रहा है तो it is included by motor neurons that conduct impulses from central nervous system to the skeletal muscles. अब autonomic nervous system. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज़ विच आर नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल. जो एक्टिविटीज़ हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है, विच आर नॉट अंडर अवर कंट्रोल एंड कंटिन्यूज टू गोइंग ऑन, दीज आर अंडर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. It consists of motor neurons that send impulses to cardiac muscles, smooth muscles and glands. तो autonomic nervous system जो है it comprises of sympathetic system and parasympathetic system. Autonomic system को it is further divided into two system, sympathetic system and parasympathetic system. Now what is sympathetic system? Sympathetic system prepares body to deal with the emergency situations. यानी कि जो sympathetic system होता है ये body को prepare करता है कि जितनी भी emergency situation है जिनको हम कह सकते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज, यानी कोई एमरजेंसी सिचुएशन है तो उसमें जो नेसेसरी एक्शंस हैं दैट आर टेकन बाय द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. फॉर एग्जांपल इट डायलेट्स द पुपिल्स,
यानी जब हम बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट की तरफ देखते हैं तो इंस्टेंटली इट डायलेट्स द प्यूपल्स, एक्सीलरेट द हार्ट बीट, इंक्रीजिंग ब्रीथिंग रेट एंड इनहिबिट्स द डाइजेशन। तो व्हेन स्ट्रेस एंड्स द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करता है, यानी अगर हमें स्ट्रेस है, हमारी हार्ट बीट एक्सीलरेट हो गई, हमारा ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो गया और डाइजेशन भी इनहिबिट हो गई। बट व्हेन स्ट्रेस एंड्स, जब स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है तब क्या होता है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम टेक्स द एक्शन। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने किसी भी इमरजेंसी की सूरत में एक फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स दे दिया, उसने हार्ट बीट इंक्रीज़ हो गई, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ हो गया। बट जब स्ट्रेस एंड हो जाता है तब क्या होता है, तब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्शन लेता है। वो क्या करता है, वो जितने भी फंक्शंस जो थे वो डीनॉर्मलाइज हुए थे वो उन सबको नॉर्मलाइज कर देता है, यानी इट कॉजेज द पीपल टू कॉन्ट्रैक्ट, प्रोमोट्स डाइजेशन, स्लो द रेट ऑफ हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग रेट। तो दिस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम and peripheral nerve. Central nervous system consists of brain and spinal cord, while peripheral nervous system consists of cranial nerves and spinal nerves. अब जो स्पाइनल नर्व्स हैं ये फर्दर 2 पाथवेज बनाती है, सेंसरी पाथवे एंड मोटर पाथवे। मोटर पाथवे इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम यानी टू स्केलेटल मसल, ऑटोनॉमिक सिस्टम टू स्मूथ मसल, हार्ट एंड इंटरनल ऑर्गन्स। अब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इट मेक्स फर्दर 2 सिस्टम्स, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विच इज डील विद द इमरजेंसी सिचुएशंस एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब स्ट्रेस एंड हो जाता है तो देन वो तमाम सिस्टम्स को नॉर्मलाइज कर देता है। इस तरह से बॉडी जो है वो नॉर्मल, अपनी जो नॉर्मल स्टेट है उसको मेंटेन रखती है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्स एक्शन, यानी व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन या explain reflex action and reflex arc with the help of example. When central nervous system sends impulses to muscles and glands, 2 types of actions result. यानी जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो मसल्स और ग्लैंड्स को इम्पल्सेस सेंड करता है तो 2 एक्शन होते हैं। द हायर सेंटर ऑफ ब्रेन कंट्रोल कॉन्शियस एक्शंस और वॉलंटरी एक्शन। जो हायर सेंटर ऑफ ब्रेन है वो क्या करते हैं, वो कॉन्शियस एक्शन को कंट्रोल करते हैं और वॉलंटरी एक्शंस को। व्हेन इम्पल्सेस आर नॉट पास टू द हायर सेंटर्स ऑफ ब्रेन तो इट रिजल्ट्स इन रिस्पॉन्सेज विच आर नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। तो सच रिस्पॉन्सेज आर कॉल्ड इनवॉलंटरी एक्शंस, यानी कि जो रिस्पॉन्सेज हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के अंडर नहीं हैं, दीज आर कॉल्ड involuntary action. Sometimes the involuntary responses produced by the CNS is very quick. Such a response is called a reflex action. Yani what is reflex action? When involuntary response produced by the CNS. CNS is central nervous system. Central nervous system क्या है, brain and spinal cord. जब involuntary response जो है वो brain और spinal cord से जो produce हो रहा है is very quick, बहुत quick हो तो it is called a reflex action. और the pathway followed by the nerve impulse, the pathway followed by the nerve impulses for producing a reflex action is called reflex arc. यानी कि जो पाथवे नर्व इम्पल्स जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म करने के लिए प्रोड्यूस करती है, इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। अब नाउ वी विल explain it with an example. The most common example of reflex action is withdrawal of hand after touching a hot object. In this reflex action क्या है, spinal cord act as a coordinator. Spinal cord जो है वो as a coordinator act करती है. Heat stimulates the temperature and pain receptor instinct. स्किन जो हीट है वो क्या करती है, वो टेम्परेचर स्टिमुलेट करती है और जो पेन रिसेप्टर हैं स्किन में उनको स्टिमुलेट कर देती है। हीट क्या है, स्टिमुलाई, ये क्या कर रही है, स्टिमुलेट कर रही है टेम्परेचर एंड पेन रिसेप्टर को इन द स्किन। तो अ नर्व इम्पल्स इज जनरेटेड विच इज़ कैरिड बाय सेंसरी न्यूरॉन टू द इंटर न्यूरॉन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो जो नर्व इम्पल्स जनरेट होगी वो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड के इंटर न्यूरॉन्स तक
आएगी। तो इंटर न्यूरॉन्स क्या करेंगे, इम्पल्स को पास कर देंगे टू द मोटर न्यूरॉन्स विच कैरी इट टू द मसल ऑफ आर्म। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, द मसल कॉन्ट्रैक्ट टू विदड्रॉ हैंड, ड्यूरिंग इट अदर इंटर न्यूरॉन्स ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस अप टू द ब्रेन सो दैट द पर्सन बिकम्स अवेयर ऑफ पेन एंड व्हाट हैपेंड। यानी इंस्टेंटली जो मैसेज है वो इट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द इंटर न्यूरॉन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, बट इन द मीन टाइम it is the interneurons also transmit nerve impulse to the brain so that the person become aware of the pain and what happened. This is spinal cord, this is the sensory neuron, receptor of temperature and brain send the sensory neuron through nerve impulse in the interneuron of spinal cord. This send the through motor neuron to the effector yani muscle of arm so that a man instantly withdraw his head from the heat. So this is the action and the pathway followed by a reflex action is called reflex arc. So students, learn your lecture properly. Allah Hafiz.